ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ KAP ਸਿਨਹਾ ਸਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੀਮਾ ਬੰਸਲ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ PDC ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ PDC। ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ SMO ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ MBBS ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 70,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਨਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 565 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ 55 ਤੋਂ 60% ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਹ 44% ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਅਤੇ 56% ਫੀਮੇਲ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹ 20%, 41 ਤੋਂ 60 तक 31%। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी सर जो गल है वो है, अगर आप पिछले ग्राफ पे जाएं तो आप देखेंगे सर जो 20 से 40 उम्र की महिला है, 63% हमारे पेशेंट महिला हैं और 37% पुरुष हैं। सर ये हमने बहुत सारी महिलाओं से बात करी और 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई कि ये इतना 26% का गैप क्यों है। तो सर अक्सर महिलाएं ना हमारे समाज में कंडीशन की जाती हैं कि उनको बुखार है तो बुखार ही तो है, जब तक वो कोई बड़ी बीमारी नहीं बनेगा इलाज कराने की ज़रूरत क्या है। तो सर वो महिलाएं अपना काम काज करके तुरंत आम आदमी क्लिनिक में आ रही हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं 37% पुरुष है, 63% महिलाएं हैं। इन महिलाओं को पहले इलाज नहीं मिल रहा था। दूसरा सर अक्सर महिलाओं को अपने हस्बैंड को, पापा को, बेटे को बोलना पड़ता है कि मुझे ले जाओ डॉक्टर के पास, सो वो नहीं लेके जाते, उनके भी कामकाज होते हैं। बट चूंकि आम आदमी क्लिनिक अब बिल्कुल मोहल्ले में आ गया है तो सर वो पैदल चली जाती है। तो जिसका कारण से महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो एक्सेस है हेल्थ केयर का, इसीलिए हम वो देखते हैं कि 26% का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा आम आदमी क्लिनिक को मिला है, आम आदमी क्लिनिक से मिला है, वो है महिलाओं को और बुजुर्गों से जिनकी मोबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड अक्सर रहती है, और तीसरा पीपल विद डिसेबिलिटी। तो ये 3 सब तो वधिया फ़ायदे हुए हैं आम आदमी क्लिनिक के बिल्कुल मोहल्ले में हो जाने के। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट हमारे आम आदमी क्लिनिक की निकल कर आई है। ਤੇ ਸਰ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 200 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਰ अगले 2-2.5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ। इसमें सर एक चीज़ और है, अगर आप सर पहला ग्राफ देखें तो पूरे पंजाब की प्राइमरी हेल्थ केयर OPD 34 लाख थी पहले साल में सर, पूरे पंजाब की प्राइमरी हेल्थ केयर OPD। सर 2024-25 में देखें तो 177 लाख OPD है प्राइमरी हेल्थ केयर की, जो इस साल सर ऑलरेडी जुलाई खत्म हुआ है 76 लाख हो चुकी है। और जब हमने प्रोजेक्शंस किए तो 2 करोड़ 30 लाख, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया उसे 7 गुना प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेस हो पाएगा
under your leadership, sir. ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਪਾਈਗੋ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨੂਰਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਵਸਥ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਏਡੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਤੇ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 32,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, 100% ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਤੇ ਕਰੀਬ 95% ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ 90 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨया ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੈਲਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਾਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਬੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ। एंड सर इस इनॉग्रेशन में पहला मैसेज सारे पेशेंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ तरफ से सर होगा, तो जब आप इनॉग्रेशन करेंगे तो सारे पेशेंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तरफ से एक मैसेज मिलूंगा। और सर जो 4 सर्विसेज जो हमने करी सर, मैं अमृतसर गया सी, मैं अलग अलग ज़िले गया सी, कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है बट अक्सर साइड हो जाते हैं। जैसे सर डॉग बाइट, पहले मैंने भी थोड़ा हल्के में ले लिया, जब हमने स्टडी करा रिसर्च करा तो देखा पंजाब में 2.5 लाख लोगों से कुत्ता काट रहा है हर साल, तो बहुत बड़ा इशू है, वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो जो सर 881 क्लिनिक में आज डॉग बाइट वैक्सीनेशन का सर थोड़े हाथ से जो रोल आउट होगा, उससे सर 2.5 लाख पंजाबियों को फ़ायदा होगा हर साल। ऐसे तो प्रेगनेंसी केयर, पंजाब का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सर काफ़ी थल्ले हैगा, बहुत सारे स्टेटों से हम पीछे हैं, पर जब ये रोल आउट होगा तो मैटरनल हेल्थ पंजाब में इम्प्रूव होगा, एंड आई एम श्योर विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री सून। तो जो 4 सर्विसेज है सर उसे सोच के करते हमने रोल आउट करने का प्लान किया। ऐसा हमारे 17% बच्चे सर कुपोषित हैं, अंडरवेट हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आम आदमी क्लिनिक में कल से मंडे से ये वाला सर्विसेज भी सर एक्टिव होगा। थैंक यू। लास्ट स्लाइड कर दो, लास्ट स्लाइड। लास्ट में जो सर आपने कहा कि सारी जैसे प्राइवेट से बेटर कि जैसे ही पेशेंट निकला आम आदमी क्लिनिक से उसको वहीं पर आ जाएगा। तो अड्डा आम आदमी क्लिनिक आने के लिए धन्यवाद। ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, अगर कोई टेस्ट कराएं तो 24 घंटे बाद उस टेस्ट की रिपोर्ट, अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 दिन बाद आना है तो 5वें दिन रिमाइंडर कि तुम्हारी डॉक्टर नाल कंसल्टेशन ड्यू है आज। और जैसे कुमार राहुल साहब ने कहा स्पेसिफिक सेगमेंट पे उनको स्पेसिफिक एडवाइस, जैसे पहले ट्राइमेस्टर पे प्रेग्नेंट महिला क्या खाए क्या ना खाए, वो पहले ट्राइमेस्टर में उसको एडवाइस आएगी। एक डायबिटिक पेशेंट का क्या लाइफस्टाइल बदलाव करनी चाहिए, वो नज, वो रिमाइंडर इसके ज़रिए होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा मानयोग मुख्य मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान जी ਨੂੰ कि WhatsApp चैटबोट जो आम आदमी क्लिनिक ਲਈ विशेष तौर ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਇੱਥੇ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 107 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ, ਫ੍ਰੀ OPD, ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਲਿਆਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ MBBS ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਖਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 200 ਹੋਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ KAP ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ KAP ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਸ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇਸ, ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਛਾਬਲਾ, ਹੁਣੇ ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ I could witness the conversation, discussion, interaction which was going on. So ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ in the state of Punjab. प्राइमरी हेल्थ केयर जो है
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰਸਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ PGI ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰੀਏ, ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਥਿੰਗ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਕਰੰਬਲਿੰਗ। ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3.7 ਕਰੋੜ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ जो है ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके ने और न केवल जो है ये 3.7 करोड़ जो है पेशेंट्स रिपोर्ट करे, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ न केवल ट्रीटमेंट ही उत्थे प्रिस्क्राइब करते, रादर जो है ड्रग्स की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर किया जाता है, टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है और टेस्ट की सारी फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। परंतु ये समस्या ये होती है कि एक इंग्लिश की कहावत है कि हेल्थ इज़ नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਨੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਤੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਊਟਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਟਰਸਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ opposite is happening. Thank you very much for being generous to the health department. Thank you very much, sir, for your guidance. Thank you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGOs, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ
हिस्टोरिक इस करके है कि ਅੱਜ एक बहुत सीरीयस डिस्कशन चल रहा है करंट जनरेशन दी हेल्थ ते, ओल्ड जनरेशन दी हेल्थ ते एंड अपकमिंग जनरेशन दी हेल्थ ते. So I will speak Hindi, Punjabi, English mix. It's kind of a revolution in Punjab when we start working on health issues. I belongs to a rural village. वहाँ पर मैंने देखा है lots and lots of patients. वो हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है, वो कोई भी बीमारी. Most of them give up, just give up to their life. वो कहते हैं अपने घर वालों को हमारा इलाज ना करवाओ ना, इलाज बहुत महंगा है, मैंने तो जाना ही है दुनिया से, लेकिन जाते जाते मैं आपका भी सब कुछ ले जाऊंगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, जो है कुछ सब बिक जाएगा, छोड़ दो मुझे ऐसे पड़े रह, चारपाई पे पड़े रहते. मैं देखता था जाके गांव में जब छोटा था, इलाज क्यों नहीं करवा रहे, पैसे नहीं है जी, इलाज महंगा है, सरकारी में इलाज नहीं है जी. आई वॉज शॉक्ड कि क्या होगा ऐसे. तो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब मेरे पास एक आइडिया आया, क्योंकि हमारे इलाके में कैंसर है ज़्यादा, मालवा में हेपेटाइटिस सी है बहुत ज़्यादा, पानी का भी है, पेस्टिसाइड्स ये वो सब कुछ मिक्स है. तो गंगानगर में एक बीडी अग्रवाल ग्रुप है, मुझे पता चला कि उनके पास बसेस हैं डायग्नोज करने के लिए, उनके पास बसेस हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को या कुछ भी और 2-3 बीमारियों को बस वो ले जाते हैं गाँव में और लोगों को बुलाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं, मेमोग्राफी वगैरह था उसमें बीच में, तो वो ऐसे उनका इलाज करते हैं या फिर उनको रिकमेंड कर देते हैं. तो मैं वहाँ गया, हमने उनसे 3 बसें ली कि कितना खर्चा होगा हम दे देंगे. तो हमने अलग अलग गांव में अनाउंस करवा दिया एक रात पहले गुरुद्वारा साहब में, कल आपके गांव में एक बस आएगी, आपने जो भी टेस्ट कराने हैं वहाँ पे फ्री होंगे, आप आइए. तो एक गांव में बस खड़ी हो गई जाके सुबह 8-9 बजे. तो मैं गया 2 बजे के आसपास, मैंने कहा देख के आए बस को. मैंने डॉक्टर से पूछा हाउ मैनी पेशेंट्स आर देयर, how many patients are there to check their health or to diagnose themselves. They say since 9 o'clock nobody comes to us. Okay. मैंने अपने ब्यूरोक्रेटिक जो डिप्टी कमिश्नर या हेल्थ के जो जितने भी ऑफिसर्स थे और जो भी हमारे लोकल पार्टी के थे, मैंने कहा व्हाट डिड यू अनाउंस यस्टरडे इन गुरुद्वारा साहब, व्हाट वाज द कंटेंट, क्या अनाउंस करवाया था. कहते जी हमने कहा था कि कैंसर का और हेपेटाइटिस सी का और काफ़ी खतरनाक बीमारियों का टेस्ट होगा वहाँ, आप आओ.
That is the problem actually. There is a diagnosed stigma. People are fear to diagnose center, to go to the diagnose center, because कहते अगर कोई बीमारी निकल आई फिर क्या करेंगे? अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है। हेपेटाइटिस सी इज ए साइलेंट किलर। वो कोई दर्द तो नहीं करता ना, कुछ नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर ने बता दिया चेक करके कि ये है, मैं तो चिंता से मर जाऊंगा, इलाज मेरे से होगा नहीं अपने आप। तो डायग्नोज स्टिग्मा इज देयर। लोग डायग्नोज ही नहीं करवाना चाहते। अगर उन्होंने कुछ बता दिया फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने वो निकाला उनके मन से। हम उस गाड़ी को ले गए वापस उस गांव से किसी और गांव में। हमने कहा ये कहो हेल्थ चेकअप के लिए गाड़ी आई है, आपका शरीर चेकअप करना है। तो पूरा गांव आ गया। अब मैंने कहा जो मैं इनका ब्लड टेस्ट ले लो, जो मर्जी हो, बताना मत, मतलब अब कि ये है, क्योंकि हमारे यहां पहले टीबी था, अब तो टीबी खत्म हो गया देश से, अब कैंसर। हमारे यहां अगर किसी को कैंसर है उसका नाम नहीं लेते, कैंसर का, बीमारी का। वो एक दूसरे को ऐसे बताते हैं, उसको तो वो बीमारी है जिसका नाम नहीं लेते, मतलब मुंह से नाम नहीं लेते। उन लोगों में काम करके मैं आया हूं, मुझे पता है। WHO बहुत अच्छा काम करे। यहाँ पे WHO के 3 बड़े जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज आई हैं यहाँ पे, डॉक्टर ग्रेस हैं, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर विकास छाबड़ा। ये बहुत दुनिया में जाते होंगे, ये बहुत ही दुनिया के सभी देशों में जहाँ गरीबी इलाका जाते होंगे। मैं भी आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ कि इलाज तो बाद में करेंगे, पहले उनको इलाज करवाने के लिए तैयार तो करें। दे जस्ट गिव अप। हमारी तो इतनी उम्र थी, बस 50, 55, 60 को लोग उम्र मान बैठे, उम्र कि पोते का मुंह देख गया, बहुत है, इतनी उम्र ही होती है आजकल। तो अगर डायग्नोज हो जाए पहले तो वही उम्र पोते की शादी भी देख सकता है वो। और सरकारों ने तो ध्यान दिया ही नहीं, हेल्थ केयर उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हमने हेल्थ केयर को मैनिफेस्टो में डाला। अब दिल्ली में आम आदमी क्लिनिक खुले, मोहल्ला क्लिनिक खुले। पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, MBBS डॉक्टर भेजे, फार्मासिस्ट भेजे, वहाँ अच्छे से उनका इलाज होने लगा, फ्री में उनका चेकअप होने लगा। तो अब ये हालात हैं कि हमें जितने भी आंकड़े बताए गए कि उनका एक, चलो ठीक है, इलाज तो चलो जैसे कहा गया कि लेडीज जाती नहीं थी या कोई लेके नहीं जाता था, तो अभी जो है हर रोज 70,000 पेशेंट इन 881 आम आदमी क्लिनिक्स में चेकअप कराने आते। चेकअप मीन्स खांसी बुखार या छोटा मोटा जो। पहले क्या होता था, पहले 3 दिन तो हम बुखार को ये इस वैसे ही दे देते थे कि बुखार ही है, तीसरे दिन उतर जाएगा। 3 दिन जुकाम को दे देते थे, तीसरे दिन ठीक हो जाता, छोड़ो, डॉक्टर ने यार पर्ची बड़ी बना देनी है, पैसे लग जाएंगे। अगर वो बुखार किसी और किस्म का है, टाइफाइड है या डेंगू है, तो 3 दिन उसको मिल गए एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया, तब तक जाते थे, तब तक फिर वो बीमारी डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती थी।
अब क्या है, अब क्या, हर छोटा सा कुछ शरीर में कुछ अनयूजुअल लगा, ये तो सामने 5 घर छोड़ के आम आदमी क्लिनिक है, वहां चले जाते हैं, तो वो बताते हैं ये ठीक हो जाते हैं। इलाज से परहेज चंगा, हमारे पंजाबी में कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा, तो वो बता देते हैं सब कुछ। तो मेरे अपने गांव में आम आदमी क्लिनिक, तो मैंने गांव वाले से पूछा कितने बंदे आते हैं, कहते हैं रोज का 200। मैंने कहा अपने गांव का यार 200 बंदा बीमार होता है हर रोज? कहते नहीं अपने गांव से नहीं आते, आसपास से भी आते हैं, और दूसरे तीसरे दिन हम टेस्ट पता चल जाता है, जो ब्लड टेस्ट, वो उसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास। फिर वो हमें कहते हैं कि चलो संगरूर चले जाओ, इसका इलाज संगरूर है, संगरूर में भी फ्री है आगे इलाज, फिर इलाज करवा लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली कहीं एक किसानों के बीच में बैठा था, तो एक बुजुर्ग ने कहा जी मेरा 3500-3700 बिजली का बिल आता था हर महीने, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। मैं शुगर का मरीज हूँ, 1200-1300 रुपये की शुगर की दवाई थी, वो मुझे आमन क्लिनिक से मिलती है, मेरा तो 5000 रुपये बच गया। वो कहते 10 लाख रुपए वाला जो अभी आप शुरू कर रहे हो हेल्थ योजना, कि किसी को भी, हर एक को, कोई फार्म नहीं भरना, कुछ नहीं, सिर्फ आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए, आप अस्पताल जाइए, इलाज करा के वापस आ जाइए, बाकी हिसाब सरकार करेगी। इतना इजी शायद दुनिया में कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। तो वो कब लागू होगा? मैंने कहा जी 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। देन ही सेड कि 2 अक्टूबर, हाँ यस। कहता फिर तो हम बीमार नहीं होंगे। मैंने कहा ये क्या मतलब हो गया? वो कहता पंजाबी हैं, हम तो मौत को भी मजाक करने लगते हैं कि आजा, जब कुर्बानी देनी हो देश के लिए कोई करना हो, हम तो मजाक करते हैं कुर्बानी को कि आजा। कहता फिर हम बीमारियों को भी मजाक करने लग जाएंगे कि आजा 10 लाख पड़ा है हमारे पास। कहते बीमारी ही नहीं आएगी हमारे पास, किसके पास तो पैसे हैं, ये तो इलाज करवा लेगा। कहता अब आती इसलिए हमारी बीमारी, उसको भी ये पता है बीमारी को कि ये मेरा इलाज नहीं करवा सकेगा, बस मैं इसके घर पे काफ़ी लंबा समय रह सकती हूँ। तो बीमारी का भी ठिकाना हमने उखाड़ दिया वहाँ से। इस बात से कितना इलाज होएगा, तो बीमारी डरती है। इलाज के लिए अगर उसके पास है सब कुछ ना, तो बीमारी भी डरती है। तो मेरे पास आंकड़े पड़े हैं सारे, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है याद करानी है, भूल गया दवाई लेना, ये काम कार में अपने भूल जाते हैं कई बार, तो उनको याद कराना, ये सब कुछ व्हाट्सएप पे कर दिया हमने। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट एक्चुअली। हेल्थ केयर में ड्यूटी बनती है हमारी, लोगों की सेहत की चिंता करना, ख्याल रखना, चिंता करना। एक और जो हिडन मेडिकल लाइन के सभी लोग हैं, जो हिडन हमें एक आप समझिए फायदा हो रहा है या हिडन एक बेनिफिट मिल रहा है, वो ये है कि जो 70,000 हर रोज आते हैं, उनमें से 25-30 हज़ार के ब्लड टेस्ट होते होंगे। हमें ये पता चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि कौन से इलाके में पंजाब में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हेपेटाइटिस सी के कितने आते हैं, शुगर के कितने आते हैं, अनीमिया के कितने आते हैं, ब्लड में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हम एक डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया, वहां हम उस एरिया में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं उस एरिया। जैसे बॉर्डर का एरिया है, वो बेल्ट जो है वहाँ पानी खराब है नीचे धरती, उसमें इवन पानी में आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, यूरेनियम भी पानी में वहाँ पे फाजिलका अबोहर में मिलता है, पानी में यूरेनियम। बहुत से गांव ऐसे हैं
WHO वालों को मैं कहूँगा कि वहाँ जाके देखना आप, ऐसे भी गांव हैं जहाँ बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज़ की चिंता नहीं होती, व्हीलचेयर लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल की बच्चियों के बाल सफ़ेद हैं। 5-6 साल के बच्चियां खास तौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाती हैं। हर घर में व्हील चेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पे ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो है वो जाते जाते पाकिस्तान जाके वापस फिर आ जाता है सतलुज। उधर से भी चमड़े की फैक्ट्रियां बिल्कुल उन्होंने उसके किनारे लगा दी, सब वहाँ से आके तो उनके पत्तन में नीचे ग्राउंड लेवल पे चला गया। आप ऐसे उनके घर से नल पे पानी भरोगे, 5 मिनट के बाद वो पानी काले रंग का हो जाएगा, वो पीना पड़ रहा है उनको। अब चाइल्डलेस कपल्स की गिनती बढ़ रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में कि पानी का प्रबंध किया जाए। बहुत गहरे पे 400 फुट 500 फुट पे पानी ठीक है, हमने 2-4 गांवों में पायलट करके देखे। तो मतलब वहाँ जाके तो लगता ही नहीं है कि ये पंजाब है, हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला पंजाब। वो तो लगता है किसी इमरजेंसी वार्ड में आ गए किसी हॉस्पिटल के। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी अभी सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ रहा है। पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के आलने थे। आप क्या उम्मीद कर सकते हो वहां से? और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर से लाओ, और बाहर वालों के साथ सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMOs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगोगे, हम दवाई भी लगाएंगे। अगर लिखनी भी पड़ी कि वो दवाई है नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओगे। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती है, इसीलिए वो जाते ही नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस, क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज़ के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा, ये 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे इस बार पंजाब के 208 बच्चे JEE एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए। JEE एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती, जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर गई। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं
इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े हैं, एयरपोर्ट के गेट पे, तो उनकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि जहाज के यहाँ बैक गियर नहीं होते, पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तो तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है, उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मास टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी सीईओ बन जाते हैं, फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं। फिर तो मौका मिले हमें, तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे। और तंदुरुस्ती के लिए सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा बहुत बढ़ गया। हमने इधर उधर से गलियां नालियां 70 साल से चल रहे जी, सरकार गली ऊंची उठा देती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, लोग अपना घर ऊपर उठा लेते हैं, गली नीचे हो जाती है, फिर मांग आती है, सरकार फिर गली ऊंची उठा देती है, घर फिर नीचे होते हैं, लोग कहते हैं अब घर और ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चल रहा है जी, क्या करें 70 साल से। किसी ने कोई हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पैसे लेने मेरे पास, जब मैं एमपी बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा यार, मन को सुकून मिलेगा। तो अभी 2-3 महीने पहली एमपी लेड की पहली किश्त आई, तो मैंने लिख दिया अपने सोशल पे कि पहली किश्त आ चुकी है, जिसको कोई चाहिए तो आ जाओ। तो पहले ही गांव वाले आए जो मेरी कंस्टिट्यूंसी के, कहते सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाई हो जी एमपी साहब। मैंने कहा बहुत बधाई हो, जीत गए जी, जीत गए, हाँ जी जीत गए। तो ग्रांट चाहिए जी गांव के लिए। मैं कहा मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, व्हाई नॉट, आपका पैसा है, आपको मिलेगा, थोड़ा लिख के दे दो, क्या करना है, किस मकसद के लिए चाहिए। 3.5 लाख चाहिए जी, 3.5 लाख मिल जाएगा, लिख के दे दो। वो जी शमशान घाट की ना जो दीवारें हैं वो ऊंची उठानी है सर। मैंने कहा क्या आपको अपने गांव के मुर्दों पर यकीन नहीं है कि वो कहीं रात को घर ना आ जाएं, बड़ी मुश्किल से तो छोड़ कर आए हैं वहाँ पे। मैंने कहा यार ऐसी चीज़ के लिए ग्रांट मांग रहे हो, जो बाहर वाले अंदर जाना नहीं चाहते, जो अंदर वाले बाहर आ ही नहीं सकते। मैंने कहा लाइब्रेरी बना दें आपके गांव में, कोई मोहल्ला क्लिनिक आने में कोई दवाइयों का सेंटर खोल दें, कोई आरओ फिल्टर वाटर पानी का प्लांट लगा दें, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दें बैठने के लिए स्कूल में, एम्बुलेंस दे दें, सोलर लाइट्स लगवा दें। मुझे वो कहने लगे जी जो आप ये शमशान के बिना आपने बोला है बाकी चीज़ें, क्या इसके लिए आप पैसे दे सकते हो? मैंने कहा मैं दे सकता हूँ, इसीलिए तो कहा है। कहते जी फिर हमारा कसूर नहीं है जी, हमें माफ़ करो। मैंने कहा क्या? कहते हमारे गांव में तो अब तक जितनी बार भी पैसे आए हैं शमशान घाट के लिए ही आए हैं बस। मतलब हमें पता ही नहीं चलने दिया हेल्थ केयर क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। शमशान इधर ये शहर में आ जाओ, गटर के ढक्कन यहीं घूम रहे हैं हम। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात,
कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते ही नहीं। पंजाब में मैं जब एमपी था, मैंने 2018 में एक मेंबर्स रेफरेंस सर्विस है वहाँ पार्लियामेंट में, वहाँ आप लिख के दे दो तो आंकड़ा मिल जाता है आपको सब। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स में हर स्टेट में मुझे मौत जितनी होती हैं पर डे उसका आंकड़ा चाहिए। नेक्स्ट डे जब मैंने लिया मैं हैरान रह गया, पंजाब वाज नंबर 1, 16 पर डे ऑन द स्पॉट, और बाकी जख्मी बाद में उनमें से भी मरते होंगे। मैंने कहा 16 इंटू 30 480, 480 इंटू 12, मतलब 5000 से ज्यादा बंदे मर रहे हैं एक्सीडेंट में हर साल। कोई केयर नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने आके जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने एक नई पुलिस बनाते हैं यार। ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना, चंडीगढ़ वाले या शहरों वाले, ये चालान काटने के लिए, इनका कोई ध्यान नहीं होता कि गाड़ी ठीक चल रही है या बस 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 आ जा। कोई उनका ये नहीं है तू रेड किया है, वो तो चाहते हैं रेड क्रॉस करे कोई, वो तो काट के बैठे हैं अभी, जा तो ऐसे कर देंगे, जब ऐसे हो जाएगा, कोई ना कोई तो काम बनता है ना उनका। तो मैंने कहा एक नई पुलिस बनाते हैं, पीएपी से हमारे पास हैं जवान, रिजर्व पुलिस है पंजाब आर्मी, उनको ट्रेन किया, 5000 बंदे लड़के लड़कियां निकाले, उनको ट्रेनिंग दी, जो फर्स्ट एड का सामान दिया, उनको ब्लीडिंग रोकने की ट्रेनिंग दी। सबसे पहले डेटॉल लगा के कॉटन लगा के पहले सबसे पहले खून बंद करना है, फिर उनको पेन किलर्स, स्ट्रेचर, आरी का ब्लेड, ताकि काट के भी कई बार एक्सीडेंट में निकालना पड़ता है, ड्राइवर फंस गया या कोई बीमारी। बड़ी गाड़ियां दी उनको, टोयोटा हिलिक्स, ताकि कोई बड़ा वाहन खड़ा है अगर सड़क पर खराब हो, उसको पुल करके या पुश करके उसको साइड पे कर दो। आपको जानकर हैरानी होगी, एसएसएफ है उसका नाम, सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर के रेडियस में वो गाड़ियां घूम रही हैं, इस वक्त भी घूम रही होंगी। एक साल में 48% डेथ कम हो गई जी। ये बात मैं नहीं बोली, ये बात भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में आंकड़ा दिया है कि पंजाब कर रहा है ये काम। और नॉट ओनली डेथ्स कम हुई, करोड़ों रुपए का कैश, जेवरात, वो भी उनको घर को वापस किए। कोई शादी से आ रहा है फैमिली, एक्सीडेंट हो गया, तब क्या अपना पर्स देखोगे आप, जान बचाने की होती है, तो वो भी सारा उनके घर पे जाके, अब जी आपकी गाड़ी से ये मिला था, ये आपको संभाल लीजिए। आज मेरे पास 3-4 स्टेट्स की ऑफर है कि जी हमारे पुलिस वालों को ट्रेन कर दोगे इसी काम के लिए। मैंने कहा भेज दो, कर दें, जान बचनी चाहिए। तो मतलब सिर्फ आप हॉस्पिटल खोलकर या डॉक्टर भेजकर ही नहीं, कुछ और तरीके भी हैं जान बचाने के, सोशल सिस्टम को ठीक करने के लिए। अपना जो रोड एक्सीडेंट्स, ये वो जो इनको अनहोई मौत बोलते हैं पंजाबी में, अनहोइयां मौतां ने, वो रोक लो तुसी बस। लापरवाही, ह्यूमन एरर्स। सो आज मैनू चंगा लग रहा है कि साढ़े कोले डाटा भी तैयार हो रहा है, 200 क्लीनिक असी होर खोल लांगे, 1000 हो जाऊगा। तो 10 लाख तक का साडा इलाज का जिहड़ा सेहत का वो भी फैसला हो गया। सानू मतलब ठीक है, NHM नाल साडा थोड़ा बहुत रहिंदा है कि साडे पैसे लेट आउंदे ने। हॉस्पिटल तुसी देख के आए हो, जे तुसी डॉक्टर साहब विजिट करा रहे हो किसी हॉस्पिटल या महल्ला क्लिनिक का, है ना, ਜਿਹੜੇ भी गेस्ट आए ने, ਇੱਥੇ ਦਾ करा दो, चाहे किसी पिंड ਦਾ करा दो ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ,
वो असी सरकारी कोल भी देते हैं। जर्मनी तो मशीनां आईयां, कोई लेटेस्ट ऐसियां मशीनां ने, MRI ਦੀਆਂ मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ प्राइवेट कोल भी है नहीं, वो असी सरकारी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ कैंसर ਦੇ होमी भाभा टाटा स्पॉन्सर्ड ने, एक संगरूर है, एक न्यू चंडीगढ़ है। 2 कैंसर के बहुत बड़े हॉस्पिटल ने। जी कैंसर ट्रेन एक जाती थी, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया था, कैंसर एक्सप्रेस, बठिंडा से बीकानेर जाती थी। वो कैंसर ट्रेन जो है वो बंद हो गई है। अब तो उधर से हमारे पास आते हैं। PGI संगरूर, एम्स, बठिंडा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हमारे पास आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल PGI से रहती होंगी, वो भी फुली ऑपरेट हो जाएंगे। और हम मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज हमने अप्रूव किए हैं। कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और एक नवांशहर शहीद भगत सिंह जी के नाम गांव में। ये आइडिया का 100-100 सीट से हैं। अगर देखो क्या होता है, मेडिकल कॉलेज के लिए एक आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर 100 सीट का करना है तो आपको आपका सिविल हॉस्पिटल 200 बेड का होना चाहिए। इसी बहाने वो 200 बेड का हो जाता है, और इसी बहाने एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज बन जाता है। मतलब एक कॉलेज जो है वो बहुत कुछ लेके आता है। तो हम, ये मुझे आइडिया आया जब हमने यूक्रेन से, जब ये वॉर हुई रशिया यूक्रेन की, यूक्रेन से हमने 450 पंजाब के बच्चे निकाले जो वहां MBBS करने गए थे। मैंने कहा यार 25 साल पहले आज़ाद हुआ देश, हमारे बच्चों को MBBS करवा रहा है। हम 70-75 वाले यार इतना भी नहीं बना सके अभी तक कि हमारे बच्चे यहीं MBBS कर ले। कहते ही सस्ता पड़ता है वहाँ। वो कोई ऐसे नलायक बच्चे नहीं थे, वो भी 98-99 कट ऑफ था, पर पैसे नहीं थे ना जितनी फीस वहाँ है। तो मैंने कहा यार हम क्यों नहीं बनाते फिर मेडिकल हब। हम बनाना चाहते हैं पंजाब को, पढ़ाई में भी और हॉस्पिटल में। NRIs बहुत आते हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ मुझे पता है सारा ये वहाँ का सिस्टम क्या है, कनाडा का, अमेरिका का। जाओ हॉस्पिटल, बैठे रहो, डॉक्टर आएंगे, हाँ जी क्या हो गया, चोट लगी है, सांस तो आ रहा है ना, ठीक है बैठे रहो। 5-5 घंटे बैठे रहते हैं मरीज। हमारे यहाँ इतना काम है, मतलब 10 मिनट में उनको टांके लगा के फ्री कर देते हैं। वहां तो जितनी देर उनका कहता है सांस चल रही है, आपको कोई केयर नहीं करेगा वहां। फिर कट्टा भी लग रहे हैं अब तो। जो हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, वो दांतों की वो जो बीमारियां वो कवर नहीं करते उसमें। हजारों NRI दांत यहां ठीक करवा के जाते हैं। मैंने कहा यार वहां क्यों नहीं करते? कहते जितने पैसे वहां लगते हैं ना, उसमें हमारे 2 बच्चों की टिकटें भी आ जाती हैं जहाज की, और यहाँ 15-20 दिन हम परिवार के साथ भी गुजार लेते हैं, और वतन का एक चक्कर भी लग जाता है, दांत भी ठीक हो जाते हैं। इतना हमारे पास टैलेंट है, इतना हमारे पास, लेकिन हम केयर ही नहीं करते, उनकी कदर ही नहीं करते। तो अगर WHO हमें साथ दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितनी भी NGOs यहाँ आई हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो गुरु नानक साहब जब उदासियों पे जा रहे थे, मतलब पूरी दुनिया में पैदल चल चल के वो सच का होका दे रहे थे जगह जगह, तो जहाँ रात होती थी वहीं रुक जाते थे। तो एक यहाँ रात हुई एक गांव में, तो भाई मर्दाना जी उनके साथी थे, तो उन्होंने कहा जी खाना रोटी, कहता बेटा मांग ले, गांव से मांग के ले आ। तो मांगने गया तो पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया,
कि तुम कुछ काम नहीं करते, तुम मांग के खाते हो। जो उन्होंने कोई उनको खाना नहीं खिलाया, ना ही रोटी दी ना खिलाया। कहता बाबा जी उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। कहता चलो चलते हैं, अगले गांव चलते हैं, ये बसते रहें। उनको आशीर्वाद दिया, बसते रहें, मतलब यहीं बसते रहो। अगले गांव में बब्बा मर्दाना जी गए, वो तो खुशी हो गए, फकीर आ गए, रब का बंदा आ गया। वो तो कहते हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे। उन्होंने 36 किस्म के भोज बना दिए, तैयार करके खिला दिया। तो गुरुजी सुबह जाते थे, कहते उजड़ जाओ। अब मर्दाने ने कहा, भाई मर्दाना जी ने, कि बाबा जी जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया, गालियां दी हमें, उनको तो आशीर्वाद दिया अपने पॉजिटिव कि बसते रहो, और जिन्होंने हमारा इतना सेवा की उनको कह रहे उजड़ जाओ। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दानिया, वो जो लोग थे जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया ना, वो अच्छी नीयत के लोग नहीं हैं, वो अच्छे बंदे नहीं हैं, वो मतलबी हैं, वो अपना खाना अपनी रोटी पे। ऐसे बंदे एक ही गांव में बसते रहें, अच्छा है। ये बड़े अच्छे बंदे थे, ये मेहमान को खाना खिला के खुश होते हैं, ये चंगे बंदे हैं, दूसरों की सेवा, मनुष्यता की सेवा करना जानते हैं। ये उजड़ जाएंगे ना इस गांव से, जगह जगह फैल जाएंगे दुनिया में, तो वहाँ भी ये वही चीज़ का प्रचार करेंगे, तो इसीलिए ये उजड़ जाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ है उसका आप प्रचार करिए। कोई ट्रेनिंग हमसे चाहिए, हम भी दे देंगे जितना हमारे पास है। तो आप सब जगह पे बताओ, देखना है तो देख के आओ, कोई कमी है वो भी बता देना, वो पूरी कर लेंगे। और लेकिन हमारा नीयत साफ है, हम फोकस्ड हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ों पर फोकस्ड हैं। और हेल्थ की बातें होने लगी हैं, एजुकेशन की तो पहले ही होने लगी थी, दिल्ली में ही अरविंद जी ने मोहल्ला क्लिनिक, और हेल्थ की भी बातें दिल्ली में होने लगी थी कि हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक। कॉफ़ी एनन ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ। ट्रंप की वाइफ ने कहा था मैं देखना चाहती हूँ स्कूल। तो मतलब जब हम, क्योंकि मैंने अमेरिका का सिस्टम भी देखा हुआ है, बहुत ही ऐसा सिस्टम है, मतलब हमारे से तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते हो जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन थोड़ा चैनलाइज एंड थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है बस। मिलके हम सब कर कौन सी चीज़ है जो भारतीय है, जब पंजाबी अगर ठान लें कि ये चीज़ करनी है, और ना हो, आज़ादी के समय ठान ली ना भगत सिंह ने, 23 साल का बच्चा था जब फांसी हो गई थी। इसका मतलब 18-19 साल के आए होंगे, 3-4 साल ही संघर्ष था, इनकलाब था, तब तक तो फांसी हो गई। 18-19 साल के बच्चों ने ठान ली अंग्रेज़ों को निकालना है। लोग मजाक करते थे, तुम कैसे निकाल दोगे? देखो फिर आज उनके मेले लगते हैं जी, आज उनके यहाँ मतलब चिताओं को माथा टेकने जाते हैं लोग। तो अगर ठान लें हम तो सब कुछ हो सकता है। और मैं यही कहूँगा कि दिस इज नॉट आवर लास्ट मीटिंग, दिस इज जस्ट बिगिनिंग, एंड आई होप फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन विद ऑल ऑफ यू। एक शेर है कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यार से, शांति से, सुकून से सुना, और मैं आपका आभारी हूँ। आई एम योर होस्ट, और पंजाबी मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी जो सेवा हम कर सकेंगे यहाँ वो हम करेंगे। बहुत 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 पंजाब की धरती पे आने के लिए शुक्रिया। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਗਰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰੁਲ ਗੁਗਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ SAS ਨਗਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰੁਲ ਗੁਗਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਿਤ ਵਾਲੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਬੱਧਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਹੀਨਾ ਗਰਗ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ ਬਰਨਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਗੀਤਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ SBS ਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਲੀਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਟੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਡਿੰਪਲ ਪਟਨਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਆਫਿਸਰ ਸਟੇਟ ਟੀਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। सीनियर सर्च ऑफिसर मिस डिंपल पटनायक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर हतिंदर कौर DHS कि वो आए हुए मेहमानों नूं धन्यवाद कहण।